Hello students of class 4th, I am going to teach you science chapter 4 reproduction in animals। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। Animals reproduce to form more of their own kind. Babies are called offsprings. Those adults that produce offsprings are called parents. The process by which an animal is able to produce another animal like itself is known as reproduction. Reproduction helps in the continuity of life on the earth. पशु अपनी तरह के और अधिक बनाने के लिए प्रजनन करते हैं। संतानों को संतान कहा जाता है। वे वयस्क जो संतान उत्पन्न करते हैं माता पिता कहलाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जानवर अपने जैसा दूसरा जानवर पैदा करने में सक्षम होता है प्रजनन कहलाती है। प्रजनन पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता में मदद करता है। Animals reproduce in two ways: by laying eggs from which their young ones hatch. Second, by giving birth to fully formed babies which look like parents at birth. जानवर दो तरह से प्रजनन करते हैं। एक अंडे देकर जिससे उनके बच्चे निकलते हैं, दूसरा पूर्ण रूप से निर्मित बच्चों को जन्म देकर जो जन्म के समय माता पिता की तरह दिखते हैं। Animals that lay eggs, birds, reptiles, fish and insects usually reproduce by laying eggs. They do not give birth to live young ones. Their young ones are hatched from eggs. The food for the baby is contained in the egg itself. अंडे देने वाले जानवर पक्षी, सरीसृप, मछली, कीड़े आमतौर पर अंडे देकर प्रजनन करते हैं। वे जीवित बच्चों को जन्म नहीं देते। उनके बच्चे अंडे से निकलते हैं। बच्चे के लिए भोजन अंडे में ही निहित होता है। Birds. We know that birds make nest. The female birds lay egg in the nest. An egg of a bird has a hard outer shell. It protects the egg. Yolk is the yellow part of the egg. That is the food for growing embryo. Around the yolk there is a white albumen. It protects the growing embryo and also stores water for it. The embryo develops into a living young one which looks like its parents. हम जानते हैं कि पक्षी घोंसला बनाते हैं। मादा पक्षी घोंसले में अंडे देती हैं। पक्षी के अंडे का बाहरी आवरण सख्त होता है। यह अंडे की रक्षा करता है। जर्दी अंडे का पीला भाग है जो बढ़ते भ्रूण के लिए भोजन है। जर्दी के चारों ओर सफ़ेद एल्ब्यूमिन होता है। यह बढ़ते हुए भ्रूण की रक्षा करता है और इसके लिए पानी का भंडारण भी करता है। भ्रूण एक जीवित युवा के रूप में विकसित होता है जो दिखता है अपने माता पिता की तरह। The male and female birds sit on the eggs for a few weeks to keep them warm as incubation. The young birds may develop and grow inside the eggs. After a few days, the babies birds break open the eggshell and the young ones come out. This is called hatching. The baby bird is called chick. The male and female birds feed and protect the young ones until they can look after themselves. नर और मादा पक्षी कुछ हफ्तों तक अंडों पर बैठते हैं ताकि उन्हें उष्यायन के रूप में गर्म रखा जा सके। अंडे के अंदर युवा पक्षी विकसित हो जा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद पक्षी के बच्चे अंडे का खोल तोड़ देते हैं और बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसे हैचिंग कहा जाता है। चिड़ियों के बच्चे को चिक कहा जाता है। नर और मादा पक्षियों का भोजन है और जब तक वे अपनी देखभाल नहीं कर सकते तब तक बच्चों की रक्षा करते हैं। The development of animals from the embryo to the adult is called its life cycle. भ्रूण से वयस्क तक जानवरों के विकास को उसका जीवन चक्र कहा जाता है। Frogs need a water body in their surroundings to be able to reproduce. Eggs are laid in a cluster called span. Embryo develops into a tiny young called a tadpole. Gradually, the tadpole loses its tail and with certain other changes gets the shape of a frog. It starts looking like a frog. बच्चों, अब हम मेढकों के बारे में पढ़ेंगे। मेढकों की प्रजनन करने में सक्षम होने के लिए अपने परिवेश में एक जल निकाय की आवश्यकता होती है। अंडे स्पॉन नामक एक कलश में रखे जाते हैं। भ्रूण एक छोटे से युवा में विकसित होता है
जिसे टैडपोल कहा जाता है। धीरे धीरे टैडपोल अपनी पूंछ खो देता है और कुछ अन्य परिवर्तनों के साथ एक आकार का हो जाता है। यह मेढक की तरह दिखने लगता है। Fish lay thousands of eggs in water. Baby fish hatch out of these eggs, but only a few fish grow into adults, as most of them are eaten by other big fish. मछली पानी में हजारों अंडे देती है। अंडों से बेबी फिश निकलती हैं, लेकिन कुछ ही फिश वयस्कों में विकसित होते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर अन्य बड़ी मछलियाँ द्वारा खा ली जाती हैं। Insects. Some insects like butterfly, grasshopper and cockroach develop from eggs. The young one of a butterfly that hatches out of the egg is called caterpillar larva. The larva of a butterfly is called maggot. The larva looks like a worm. It does not have legs or wings. It builds a cocoon around itself to form a pupa. A few weeks later, the cocoon opens and an adult butterfly comes out. Insect babies are not looked after by the parents. Insects. कुछ कीड़े जैसे तितली, टिड्डा और तिलचट्टा अंडे से विकसित होते हैं। अंडे से निकलने वाली तितली के युवा को मैगॉट कहा जाता है। लार्वा के कैटरपिलर। एक तितली का लार्वा एक कीड़े की तरह दिखता है। इसके पैर या पंख नहीं हैं। यह पुपा बनाने के लिए अपने चारों ओर एक कोकून बनाता है। कुछ सप्ताह बाद कोकून खुलता है और एक वयस्क तितली आती है। माता पिता द्वारा कीट शिशुओं को देखभाल नहीं की जा सकती है। Insects like grasshopper and cockroach pass through 3 life cycle stages. The egg hatches into a young cockroach called nymphs, which look similar to the adult but does not have wings. It sheds its skin several times and changes into an adult. This process of shedding the old skin is called molting. टिड्डे और तिलचट्टे जैसे कीड़े जीवन चक्र के 3 चरणों से गुजरते हैं। अंडे से यह युवा तिलचट्टा बनता है, जिसे अप्सरा कहा जाता है, जो वयस्क के समान दिखता है, लेकिन उसके पंख नहीं होते हैं। यह अपनी त्वचा को कई बार बहाता है और एक वयस्क में बदल जाता है। यह पुरानी त्वचा को हटाने की प्रक्रिया मॉल्टिंग कहते हैं। रेप्टिल्स. Lizards, snakes and turtles from a group of animals called reptiles. They do not need a water body for reproduce, even if they live near rivers. They lay their eggs on the ground. Their egg shells are hard and hence do not break. After laying the eggs, some of them go away and never come back. The eggs are warmed by the heat of the sun. Many of them are eaten by other animals. On the other hand, crocodiles make nests for their eggs on the ground and remain closed till they hatch. When the eggs hatch, the mothers pick the young ones in her mouth and carry them to the water. They guard them for a few months. रेप्टाइल्स. छिपकली, सांप और कछुए जानवरों का एक समूह बनाते हैं, जिन्हें सरीसृप कहा जाता है। नदियों के पास रहने पर भी उन्हें प्रजनन के लिए जल निकाय की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने अंडे जमीन पर रखते हैं। उनके अंडे के छिलके सख्त होते हैं और इसलिए टूटते नहीं हैं। अंडे देने के बाद उनमें से कुछ चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। अंडे सूर्य की गर्मी से गर्म होते हैं। उनमें से कई अन्य जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। दूसरी ओर मगरमच्छ अपने अंडों के लिए ज़मीन पर घोंसला बनाते हैं और उन्हें तब तक याद दिलाते हैं जब तक कि वे फूट न जाएं। जब अंडे सेते हैं तो माताएं अपने मुंह में बच्चों को उठाती हैं और उन्हें वापस वार्स में ले जाती हैं। वे कुछ महीनों तक उनकी रक्षा करते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज. एनिमल्स लाइक काउज, डॉग, रैबिट, कैट, गोट्स, बफेलो, लॉयंस एंड टाइगर्स गिव बर्थ टू बेबीज. दे फीड them with their milk. Such animals are called mammals. Human beings are also mammals. The babies of mammals grow inside the body of the mother for 9 months. When the babies are born, they cannot take care of themselves. Once born, the parents guard, feed and keep their babies clean. Whale and dolphins are aquatic mammals that look like fish. They give birth to young ones like themselves. जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, गाय, कुत्ते, खरगोश, बछड़े, बकरियां, भैंसें और बाघ जैसे जानवरों को जन्म देते हैं।
वे वहाँ अपने दूध के साथ भोजन कराते हैं। ऐसे जानवरों को स्तनधारी कहा जाता है। मनुष्य भी स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी के बच्चे माँ के शरीर के अंदर 9 महीने तक बढ़ते हैं, तब बच्चे पैदा होते हैं। वे खुद ही देखभाल नहीं कर सकते। एक बार जन्म लेने के बाद माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, खिलाते हैं और साफ रखते हैं। व्हेल और डॉल्फिन एकपाल स्तनधारी हैं जो मछली की तरह दिखते हैं। वे युवा लोगों को जन्म देते हैं जो खुद को पसंद करते हैं। पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस एनिमल्स। Our parents take care of us. They meet our needs so that we may grow up into the healthy, responsible person and can take care of ourselves. We also see this type of care being given by most mammals and birds. जानवरों के बच्चों की माता पिता की देखभाल। हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं ताकि हम एक स्वस्थ जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकें और अपना ख्याल रख सकें। हम इस प्रकार भी देखते हैं कि अधिकांश स्तनधारियों और पक्षियों द्वारा दी जा रही देखभाल को। वी हैव सीन हाउ डॉग्स लुक आफ्टर देयर पपीज़ और हाउ कैट्स लुक आफ्टर देयर किटन्स। दे केयर फॉर यंग वंस, फीड them with milk and protect them till they can look after themselves. All mammals take care of their young ones. Similarly, male and female birds look after their young ones, feed them and keep them warm by covering them with their wings. हमने देखा कि कुत्ते अपने पिल्लों को देखभाल कैसे करते हैं या बिल्लियां अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती हैं। वे बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं और तब तक उनकी रक्षा करते हैं जब तक वे खुद की देखभाल नहीं कर सकते। सभी स्तनधारी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इसी तरह नर और मादा पक्षी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और उन्हें अपने पंखों से ढककर गर्म रखते हैं।